Hi students. Today again this video is for class 11th trigonometry. This is part second lecture of trigonometry for 11th class. So I'll start today some proving question based on the formula that we'll use in trigonometry. So for understanding this video you have to go to revise all the formulas so that it is very easy and very convenient to understand you. So now I'll start questions, some good questions. So first of all we have a question. If cos A, problem 1 is if cos A is equals to 4 by 5, cos B is equals to 12 upon 13, and also we are given 3 pi by 2 is less than A comma B, and both are lying between this. Means our angle is lying between 270 and 360. That is, this A and B lies in fourth quadrant, and cos A and cos B, because cos in fourth quadrant is positive, so we are given, we have to find, यहाँ लिख देता हूँ, to find cos A plus B, and second is sin A minus B. So first of all we know that cos A plus B, the formula is for cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. So we will have to find sin A and sin B also. So when you start solution, so first of all, as we have cos A, so we will make two triangles. Suppose this angle is A angle, this is A basically. So for this angle, this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. So ratio is 4 by 5. So by Pythagoras theorem, this will be 3, and so we get sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse 3 upon 5. Similarly, when we construct another right triangle with base angle B, cos B is 12 upon 13. So base is 12, hypotenuse will be 13. Then by Pythagoras theorem, we'll get this is 5, and therefore sin B is equals to, sin B will be equals to perpendicular upon hypotenuse, so 5 upon 13. So one thing we'll find sin A and sin B. Now the part 1, cos A plus B, इसका फार्मूला होता है cos A cos B minus sin A sin B. Simple question. This question is totally based on this formula, and just put the value and get answer. Cos A कितना है अभी 4 by 5, cos B 12 upon 13, sin A 3 upon 5, sin B is 5 upon 30. So LCM will be 13 5s are 65, and this is 12 4s are 48 minus 15. So finally we get 33. 3 or 5 8 3 4, yes, and 65. So first answer cos A plus B is this, and second part sin A minus B. So फार्मूला इसका बदल जाता है, जैसे cos में cos cos sin sin होता है, sin में होता है sin A cos B. आपको फार्मूला याद करना होगा सबसे पहले, sin A minus B sin A cos B minus cos A sin B. फार्मूला ट्रिकी है थोड़ा सा, cos में प्लस था तो माइनस होता है, sin में माइनस है तो माइनस ही रहता है, यहाँ चेंज हो जाता है, cos में चेंज होता है और sin में चेंज नहीं रहता. So just put values here. sin A is 3 upon 5, cos B 12 upon 13 minus cos A 4 upon 5, sin B 5 upon 13. So again the LCM is 13 5 is 65,
ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 3 जा 36 माइनस 4 5 जा 20. So this is equals to 16 upon 65. So this is the answer for sin A minus B, and ये answer है cos A plus B. So in this way the first question is completed and I think it's clear. Now see the second question. Again a very good question. If cot alpha, we are given cot alpha is equals to 1 by 2 sec beta is equals to minus 5 upon 3, where we are given our angle pi is less than alpha is less than 3 pi by 2 and beta is lying between pi by 2 and pi. Means beta is in second quadrant and alpha in third quadrant. So that's why we are given these two things and we have to find tan alpha plus beta. TF to find tan alpha plus beta, and we know that इसका फार्मूला होता है tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. तो tan alpha tan beta अगर हमें सब कुछ क्लियर हो, so it is very easy to find everything. So it's very clear solution. सबसे पहले we have tan beta. Tan alpha is 1 upon tan cot alpha. Sorry, tan alpha is equals to 1 upon ये. So we have this thing, and we have sec beta. So first of all we'll write tan beta is equals to sec square beta minus 1 का square root, and of course beta is in second quadrant. Add sugar to coffee, so from there we know that in second quadrant sine and cosec are positive and the rest things are negative. So we'll write negative sign here because of this quadrant. And alpha, this is in third quadrant, tan is positive, cot is positive, so these two are positive. So this is equals to minus of under root sec square beta. So sec beta का square will be 25 upon 3 3 is a 9 minus 1. 25 by 9 minus 1. So this will be minus 16. When you we subtract this 9 from 25, that is 16 का square root is 4 upon 3. So this is tan beta. So if you get tan beta and tan alpha, so I think this is so easy, and therefore now using the formula tan alpha plus beta, and that is tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. Now substitute these values and evaluate the answer. So this is 2 plus minus, so will be minus 4 by 3 upon 1 minus 2 into minus 4 by 3. So this is equals to 2 3 is a 6. So 2 upon 3 whole upon this will be plus 4 2 is a 8. 3 here and this is 3. These 2 3 will be cancelled out. So answer is 2 upon 8 3 11. So the final answer is this. Now one more question I have. Third question. This is from NCERT. Prove that tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square. So this is so simple. We can prove this from LHS to RHS. This will be easy. Otherwise possible from right to left also. So we'll start from left hand side. First of all we'll copy this all. Then we'll use the formula tan A plus B and tan A minus B. And the formula as we know tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. And tan A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. So we can use it directly. So this will be tan pi by 4 1 plus tan x
अपॉन 1 माइनस tan a tan b दैट इज tan x, ये ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर tan a माइनस tan b, तो यहाँ ऊपर माइनस हो गया अपॉन 1 प्लस tan x. I think everything it's clear because tan pi by 4 is 1. I have directly written here tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. When we multiply this is 1 here, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो डायरेक्टली मैंने लिख दिया इसको. सो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज बेसिकली 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, and this is equals to RHS henceforth. So in this way we can prove these things, they are very easy. So now let's see the next question, problem number 4. So basically the trigonometry is very easy, just we have to learn all the formula and a calculation must be good. So the problem number 4 is again a very good question. We are given, I'm writing, just dictating the question, tan a minus tan b is x, tan a minus tan b is equals to x we are given, and also we are given cot b minus cot a is equals to I. We have to show, to prove cot a minus b is equals to 1 upon x plus 1 upon y. इसे करने के दो तरीके हैं, either you can start from that side or you can start from this side directly, because the formula cot a minus b will be reciprocal of tan a minus b, and tan a minus b we know that. So I can solve from here also and here also. So I suggest कि proof will start from RHS. RHS will be 1 upon x plus 1 upon y. So this will be 1 upon tan a minus tan b plus 1 upon cot b minus cot a. और कहा जाता है जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी ना यूज हो रही हो, तो हम हमेशा इसको, हालांकि लाना हमको tan में है तो कॉट में लाना है, तो हम इसको साइन और कॉस में खोल लेते हैं, इट विल बी वेरी इजी. सो दिस इज इक्वल्स टू साइन a माइनस बाई कॉस a, एंड दिस इज साइन b बाई कॉस b. या बेटर है मैं इसको tan में ही खोल देता हूँ, आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो गुड. सो कॉपी दिस tan a minus tan b plus, you know that when we write this as 1 here, 1 upon tan b minus 1 upon tan a. So सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. So we'll write this as it is, tan a minus tan b plus, you know when I take LCM here, so LCM will be ऊपर चला जाएगा ये, so this is tan a into tan b, और नीचे हो जाएगा this is tan a minus tan b. So finally we get 1 plus tan a tan b upon tan a minus tan b. इसको मैं फॉर कन्वीनियंस ऐसा लिख सकता हूँ, tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b. ऊपर वाली चीज को नीचे कर दिया, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर tan a minus b. सो 1 upon tan a minus b, एंड ये हो जाता है cot a minus b, and that was is equals to LHS. So you can see the entire proof is so easy. हालांकि हम लेफ्ट हैंड साइड से भी करते तो भी आंसर आ जाता, बट आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है और आसान है, और किसी भी तरफ से स्टार्ट करो यू विल गेट आंसर. नाउ नेक्स्ट. सो क्वेश्चन आसान होते हैं, बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना होता है.
कई बार थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है क्वेश्चन में। जैसे आई हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है। प्रूव दैट, दो चीजें हैं इसमें। नंबर 1, tan 3x, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। और इसी से मिलता जुलता है इसका सेकेंड पार्ट भी है कि cot x cot 2x, इसमें सारा कुछ cot में है, माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल्स टू। सो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, tan 3x को हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस x। रीजन ये है कि हर जगह देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो इसका मतलब 3x 2x में एक रिलेशन चाहिए। सो दिस फार्मूला विल गिव अस अ रिलेशन। सो नाउ वी यूज द फार्मूला tan ऑफ a प्लस b। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a into tan b and this is tan 3x here। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल गया। सो दिस इंप्लाइज tan 3x माइनस tan 3x into tan 2x into tan x is equals to tan 2x plus tan x। अभी क्या करना है हमको, जैसा कि डायरेक्ट है हमें शो करना है, इसको हम राइट साइड में कर देते हैं और बाकी चीजों को इधर ले लो। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू tan 3x tan 2x इंटू tan x। देखो एक्चुअली इसको हमको लेफ्ट में लिखना है, इसको राइट में लिखना है, तो फर्क नहीं पड़ता। यू कैन स्विच इट and directly you can get your proof। अब अगर इसका प्रूफ करना है तो या तो आप डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर लो, यहाँ तक करने के बाद पूरे को कॉट में बदल दो, यू विल गेट आंसर। अदरवाइज डायरेक्टली आप कॉट का भी फार्मूला इसी तरह लगा के निकाल सकते हो। अब इसमें कॉट का भी फार्मूला अगर हम लगाएं तो आंसर तब भी आ जाएगा डायरेक्ट के लिए, और नहीं तो बेटर है कि आप पूरे में कॉट लगा दें। जैसे फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया, अब अगर सेकंड पार्ट स्टार्ट करना हो तो आप यही कॉपी कर लो, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू tan, ये हमने प्रूव कर लिया है, सो वी कैन यूज इट। इसका मतलब है कि सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमको फर्स्ट पार्ट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। और tan को कॉट लिखने के लिए 1 अपॉन कॉट माइनस 1 अपॉन कॉट माइनस 1 अपॉन कॉट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये तीनों को नीचे आ गए, सो cot 3x cot 2x cot x। इसका अगर आप एलसीएम करते हैं तो वही चीज आएगा जो कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस x कट जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे cot 2x cot 3x, और यहाँ पे 1 अपॉन जो है वो तो आपको क्लियर है कि कट गए, ये जो यहाँ पे है वो यहाँ एलसीएम था, सो कट गया, सो डायरेक्टली यू गेट दिस थिंग एंड दैट्स योर प्रूफ। सो हेंस, सो दीज टू सम्स आर वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, see the next problem। The question is again a very good question and आपने एनसीईआरटी में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े हैं उसमें एक फार्मूला और ऐड कर लेते हैं हम। ये भी फार्मूला होता है कि साइन a प्लस बी, ये आर डी शर्मा में दिया हुआ है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो
इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस फार्मूले को यूज करने से क्वेश्चन आपके बड़े आसान हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम कॉस का करें, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये दो और फार्मूले थे जो आप अपने आप नोट में ऐड कर सकते हो कि these are the two extra formula that we can use for solving questions, difficult questions in very easy ways. So a question based on this you can see our question number 6. Prove that pt cos square 2x minus cos square 6x, that is sin में convert कर लेंगे. We have to write this as sin 4x into sin 8x. So what we'll do, we'll start from LHS. Proof. Just see the proof. LHS बराबर cos square 2x minus cos square 6x. So you know that this is 1 minus sin square, because sin plus cos k square का sum is 1. So we'll write this. And minus, because of minus sign we always write a bracket here, sin square 6x. So we can write this 1 and 1 will be cancelled out, so this will be plus. So sin square 6x will be pehle minus sin square 2x. So we'll use the identity that is here. Sin square a minus sin square b is sin of a plus b. So this is sin of a, that is this plus this, into sin of a minus b, that is a. So basically you get 8x into sin 4x. अब 4x into sin 8x लिखो, बात एक ही है. So this is equals to right hand side and hence your question finished. ये फार्मूला था इसलिए बड़ा इजी रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन. I think this is a very good question. All questions are good basically. Problem number 7. Cos 2 alpha into cos 2 beta, cos 2 alpha into cos 2 beta plus sin square. This question is from R.D. Sharma. Sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta is equals to cos twice alpha plus beta. We have to show it. TP. To prove that this. So how can we solve it? I think we can use identity here. Something. Let's do. So proof. You start your solution here. First of all, we'll start from LHS. So LHS will be copy. First of all, we'll copy the above. और अब इसमें जो करना है वो स्टार्ट करते हैं. Cos 2 alpha, cos 2 beta, sin square a minus sin square b is sin a plus b into sin a minus b, sin a plus b into sin a minus b. इन दोनों को प्लस करो, बीटा कट जाएगा 2 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा. जब इसमें से इसको माइनस करोगे बिल्कुल सही. सो ये cos cos, ये sin sin. So it's again an identity I think. Cos a cos b plus sin sin b. This is cos a minus b. Cos, what is a? 2 alpha, and what is b? 2 beta. The identity, you know that cos square a minus cos sin a plus b into sin a minus b is sin square a minus sin square b is okay. So this is good. Sin a plus b, beta cut गया 2 alpha into sin this minus. So this is minus.
2 beta. Okay, when we subtract alpha minus beta minus alpha minus beta, so basically alpha alpha cancel, this is minus 2 beta. So calculation wrong tha, and sin of minus theta is minus of sin theta, so because of that we'll write a minus sign here. So you can write this as cos 2 alpha cos 2 beta, and just because of this minus sign we'll write the negative sign here, and this is sin 2 alpha into sin 2 beta, because ये फार्मूला होता है कि sin of minus theta is minus sin theta. This is rough work. So ये हो गया cos A cos B minus sin A sin B. ये फार्मूला होता है cos A plus B का 2 alpha plus 2 beta. So basically we get cos of twice alpha plus beta, and यही हमको प्रूव करना था. This is RHS hence proof. So we'll start new question again. This is second video of trigonometry, and you have I'll continue one more till the entire topic will be finished. The basic ideas of trigonometry I'll try to finish for CBSE boards. So आप एक एक वीडियो को देखते रहोगे तो सारी चीजें आपकी डेफिनेटली क्लियर होंगी. Next question, it's I think a very good question. Problem number 8. This is cos alpha minus, question is if cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha, this is gamma, is equals to minus 3 by 2, then prove that cos alpha cos beta cos gamma is equals to sin alpha sin beta plus sin gamma, and both are equals to 0. We have to prove. आपको दिया हुआ है ऊपर वाली एक्सप्रेशन और उसे यूज करके ये प्रूव करना है. सोचना कई बार मुश्किल हो जाता है, बट हम क्या करेंगे, हम तो इसको खोलेंगे बेसिकली. सो प्रूफ, इस लाइन को सबसे पहले हम कॉपी करेंगे. कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन b. So we know that cos A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. So cos A cos B plus sin A sin B. Same here, cos beta cos gamma plus sin beta sin gamma. Again either cos gamma cos alpha plus sin gamma sin alpha is equals to minus 3 upon 2. अब देख सकते हो कि cos alpha cos beta यहाँ पे है, दोबारा नहीं है, कहीं नहीं है. इस 2 को इधर ले आओ, तो दिस इज 2 cos alpha cos beta plus 2 sin alpha sin beta plus 2 cos beta cos gamma plus 2 sin beta sin gamma plus 2 cos gamma cos alpha, and last plus 2 sin gamma sin alpha equals to 3 minus 3 या plus 3 is equals to 0. इस 3 को मैं 1 plus 1 plus 1 लिख दूं,
3 टाइम्स, और हर वन को मैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा करके इस तरह से मैं लिख दूं, तो आप देखिए एक आइडेंटिटी बनती नजर आएगी आपको। मैंने वन को बोला, जो पहला वन है उसको लिख दो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दूसरे वन को आप लिख दो साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तीसरे वन को लिख दो साइन स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा, और प्लस ये जो दो दो बारी सारे हैं इनको फिर से लिखना पड़ेगा, 2 cos 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 अल्फा cos बीटा, दूसरा साइन साइन 2 साइन अल्फा साइन बीटा, टू cos बीटा cos गामा, 2 साइन बीटा साइन गामा, प्लस 2 cos गामा cos अल्फा, एंड एक बचा है साइन गामा साइन अल्फा, प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा बराबर 0। आई थिंक क्लियर टिल हियर। सो सी दिस, अब अगर मैं इसमें सारे साइन साइन को इकट्ठा कर लूं तो यू कैन सी, सारे साइन को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा, एक ब्रैकेट में कर लो, और इसी तरह सारे कॉस वालों को कर लो, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा is equals to 0. So this is the identity that we'll use here, a plus b plus c whole square. So we can write implies sin alpha sin beta plus sin gamma का whole square plus cos alpha cos beta plus cos gamma का whole square is equals to 0. अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, because square of any real number is always non-negative, so this cannot be negative, this cannot be negative. अब दोनों ही नेगेटिव नहीं है और इनका सम 0 है, इसमें एक भी अगर पॉजिटिव हो जाए so can this sum be 0? बिल्कुल नहीं, दोनों ही नॉन नेगेटिव है और दोनों ही पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही 0 हैं, so this implies ये भी 0 ये भी 0, so directly I will write the result here sin alpha sin beta sin gamma is equals to cos alpha plus cos beta plus cos gamma, and both will be equals to 0, hence proved. So this question is a good question, little bit tricky कि पहले को लो फिर 2 को इधर लाओ फिर 3 को इधर लाओ, 3 को 1 1 1 करके छोड़ो, फिर 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर करके लिखो, और फिर सारे साइन इकट्ठे कॉस इकट्ठे, आइडेंटिटी मिल गई, 0 किया, उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है। सो दैट इज सो सिंपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ओनली गुड क्वेश्चंस, जिसको आप प्रैक्टिस करो समझो और तब आपकी ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। आई हैव लॉट ऑफ सम्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 9। बहुत पूछा जाता है छोटी मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क के क्वेश्चन में, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि प्रूव दैट PT tan 70 degree is equals to tan 20 degree
प्लस 2 tan 50 डिग्री। एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो आपकी टेबल वैल्यू हो। तो इसका सबसे बेस्ट वे होता है प्रूफ, आप याद रख लो कि tan 50 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 70 डिग्री minus 20 degree. Actually these two angles are complementary to each other, they are complementary angle. So use the identity tan of A minus B. So this is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. और जब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये कट के 1 हो जाएगा. You know this is cot 70. So this is tan 70 degree minus tan 20 degree upon 1 plus tan 70 ऐसे रहने दो. You know tan 20 को आप क्या लिखोगे? cot 70. tan 20 is cot 70 और cot 70 is 1 upon tan 70, तो ये दोनों कट जाएंगे. So basically you get tan 70 degree minus tan 20 degree upon 1 plus, चलो मैं लिख देता हूँ tan 70 डिग्री अपॉन कॉट को नीचे कर दोगे तो ये tan 70 होगा. और ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये आया कैसे. देखिए tan 20 को लिख सकते हो tan 90 minus 70, tan 90 minus थीटा cot थीटा. 20 को आप क्या लिखोगे? या ठीक है, tan 90 minus theta is cot, so this is cot 70 degree. अब ये कट जाएगा 1 हो गया. So basically this is tan 70 degree minus tan 20 degree upon 1 plus 1. This is tan 50. So वो 2 इधर ले आओ तो 2 tan 50 डिग्री बराबर tan 70 डिग्री minus tan 20 degree. Hence go. This is again a good question. See the next part. Next question. Question number 10. In this question, find the sign of the expression. Find the sign plus या minus sign of the expression. Sign of the expression. Sign of 100 degree. You know this is second quadrant angle तो ये तो पॉजिटिव ही है. Plus cos of 100 degree. अब cos 100 नेगेटिव है. एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कैसे सोचेंगे इसका साइन क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चनों में या अगर कोई पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है. तो सॉल्यूशन इज बेसिकली डायरेक्ट ऐसे किया जाता है. ये तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं. cos 100 डिग्री वी हैव दिस वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड इट साइन. सो हम क्या करेंगे, यू नो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो अगर इन दोनों को 1 को यहाँ 1/√2 हो जाए, यहाँ 1/√2 हो जाए, तो ये साइन और cos π/4 करा जा सकता है. सो वी कैन राइट दिस एज √2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/√2 साइन 100 डिग्री. दिस इज द वे. 1/√2 cos 100 डिग्री. यू कैन राइट √2. सपोज आप साइन में लिखना चाहे cos किसी में भी लिख दीजिए. साइन लिखना है मान लिया तो हमने साइन π/4 लिखा 45 डिग्री साइन 100 डिग्री प्लस cos π/4 इंटू cos 100. नाउ फार्मूला क्या लगेगा भाई? cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B. और cos के लिए तो फर्क भी नहीं पड़ता A कौन सा B कौन सा, बिकॉज cos A माइनस B और cos B माइनस A दोनों सेम होते हैं, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. तो दिस इज 100 डिग्री माइनस π/4 को आप 45 डिग्री कर लीजिए. सो √2 cos दिस इज 55
50 40 90 यस, और cos 55 पॉजिटिव होता है, so this is greater than 0, so sin is positive, so value of this is positive sin. और अगर कोई पूछता है कि इसकी रेंज क्या होगी, कहां से कहां तक होगा, तो यू नो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 × √2 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी √2 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू -√2 हो जाएगी। सो क्वेश्चन मैक्स मिन भी पूछा जा सकता था, और बेसिकली अगर साइन पूछा है तो साइन तो आपको क्लियर हो गया कि इट इज पॉजिटिव, और यहाँ पे मैक्स मिन नहीं हो सकता था बिकॉज ये एक एग्जैक्ट एंगल है, तो इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 11. क्वेश्चन cos दिया हुआ है, these are given है हमको cos alpha plus beta is equals to 4/5। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके फार्मूलों के लिए हैं, आपके फार्मूले वेरीफाई हो रहे हैं इससे। sin अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल्स टू 5/30। अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 and π/4। अल्फा बीटा दोनों ही बहुत छोटे एंगल है, एक्यूट एंगल है। प्रूफ करना है, प्रूव दैट tan 2 अल्फा is equals to 56/33। सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्रूफ में आप सीधे स्टार्ट करेंगे कि tan 2 अल्फा को आप लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि बीटा बीटा कट गया तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा ही बचा। अब tan a प्लस बी और tan a माइनस बी इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, दिस इज a दिस इज b। सो tan a प्लस बी फार्मूला होता है tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट इन दोनों का tan a tan b। अच्छा, अब जैसे कि आपको cos पता है और आपको sin पता है, तो जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन बताया था उसमें आप एक ट्राइंगल बना लो जिसका बेस हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर आ गया, उससे आप इसी एंगल पर tan निकल जाएगा। सिमिलरली एक ट्राइंगल दूसरा होगा जिसका बेस एंगल अल्फा माइनस बीटा ले लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है, बेस आ जाएगा 12 बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्टली क्यों ना लिख ले हम tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पे तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सॉरी। सो ये बेस तो 4 है, परपेंडिकुलर इससे निकल कर 3 आ जाएगा, प्लस साइन हमको पता है नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है, सो बेस हो जाएगा 12। तो tan मतलब कि परपेंडिकुलर 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इन दोनों के लिए ट्राइंगल बना लीजिए और ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी। सो अगर आप यहाँ पे एलसीएम करते हैं तो इसे 12 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जाएगा, 3 3 9, 9 and 5 14 अपॉन 12। इसी तरह से अगर यहाँ करते हैं तो 12 4 48 माइनस 5 3 50 अपॉन 48, 12 1 12 3 48। सो ये हो जाएगा 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 14 3 42 अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 8 - 5 is 3 और 4 - 1 is 3 और 3 के टेबल में आ रहा है ये, तो 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा 3 4 जा 12। सो दिस इज 14/11। tan 2 alpha is equals to this। Yeah, we have to prove something else. We have to write this thing, tan 2 alpha should be 56/33। तो just see कहाँ पे प्रॉब्लम आई। ओके, सी दिस, tan 2 alpha is equals to this। okay, so tan a plus tan b upon 1 minus tan a is good। so you know that
फॉर अल्फा प्लस बीटा जब आप एंगल लेते हैं तो जो राइट ट्रायंगल बना था ये एंगल है ये, इस केस में कॉस हमको पता, तो दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 बिकॉज 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर रूट इज दिस एंड अल्फा माइनस बीटा पर अगर आप ये ट्रायंगल बनाते हैं तो ये साइन है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज 12। अब दोनों जगह अगर आप tan निकालेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा 5/12 1 माइनस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 3 जा 15 अपॉन 12 4 जा 48। देखते हैं इसको अगर मैं 12 करूं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 9 और 5 40 अपॉन 48 अपॉन 48 minus 15 33 upon 48, so this will be cancelled out, actually 14 upon 33, so this is wrong, this should be 14. Question is incorrect, so this must be 14 upon 33, so hence now see the next question. क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, बाकी अगर आपका फार्मूला करेक्ट है तो डोंट वरी, वट एवर बी यू गेट दैट विल बी आंसर। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, फार्मूला सही होना चाहिए, उसके बाद आंसर जो भी आता है करेक्ट ही आएगा। हो जाता है कई बार गलत भी हो जाता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। This is again prove that to insert प्लस दूसरा एक और रूट, फिर से 2, फिर से एक और रूट 2 प्लस 2 cos 8x, we have to prove this is equals to 2 cos x, and we are given x belongs to 0 to pi by 8, मतलब x pi by 8 से छोटा है और 0 से बड़ा है। सो LHS प्रूफ, सबसे पहले हम कॉपी करेंगे 2 प्लस 2, ये भी रूट है, प्लस 1 2 तीसरा यहाँ पे है, इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस cos x। एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं 1 को इधर लाता हूं तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, मतलब इस एंगल का यहाँ हाफ हो जाता है और ट्वाइस करके, सेम ही चीज यहाँ भी यूज होगा। सो दिस इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस cos x कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ x बाई 2, और ये पूरा एक रूट है। सो अब आपको देख सकते हो 2 प्लस दिस वाला 2 एंड ये पूरा रूट, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा cos x बाई 2। फिर से वही 2 कॉमन यहाँ पर, और ये सर्ड पूरे का है। When you take 2 common, this is 1 plus cos x by 2. सेम फार्मूला फिर से लगा लो, तो 2 plus 2 into 1 plus cos 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ x by 4, x by 2 का हाफ x by 4, और ये हो जाएगा 2 plus 2 cos x by 4, और इसमें अगर आप 2 कॉमन लेंगे, रूट 2 बाहर कर लीजिए, सो रूट में आएगा 1 प्लस cos, सो 1 प्लस cos इज 2 cos स्क्वायर x by 8, फिर से हाफ, सो ये हो जाएगा 2 cos x by 8। लाना क्या था, दिस इज अगेन रॉन्ग,
this must be by 8. So is equals to right hand side, hence proved. Is this clear? I think. नेक्स्ट क्वेश्चन, गलती से हो गया, हो ही नहीं सकता कि अगर cos x हो तो यहाँ पे x तो आ ही नहीं सकता. सो क्लियर है, सो डोंट वरी, जो आ गया यही आंसर है, यही होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. नाउ वन मोर अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. प्रूव दैट sec of 8x minus 1 upon sec 8x minus 1 upon sec 4x minus 1, sec 4x minus 1, and this is equals to, प्रूव करना है आपको, tan 8x upon tan 2x. These are good questions. और मैं चाहता हूँ बस इतना पढ़ लो, आपका इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन कुछ पढ़ लो. एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे अगर आपको इतना क्लियर हो जाता है. फार्मूला क्लियर हो, ये क्लियर हो, एवरीथिंग समझो क्लियर है. ये प्रूफ करना है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. प्रूफ LHS sec 8x minus 1 sec 4x minus 1. सबसे पहले cos में खोल लो, यहीं पे कर देता हूँ. दिस इज 1 अपॉन cos, दिस इज 1 अपॉन cos, एलसीएम भी कर लो तो विल बी 1 माइनस cos 8x अपॉन cos 8x होल अपॉन 1 माइनस इसी तरह से cos 4x अपॉन cos 4x. और जो आइडेंटिटी अभी आपने cos 2 थीटा का किया था, फिर से मैं बता देता हूँ. cos 2 थीटा को अगर मैं साइन में करूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. बाकी हम लोग याद रखते हैं कि अगर ये 1 माइनस cos हो, माइनस में साइन आता है, और पीछे जो किए थे क्वेश्चन उसमें 1 प्लस cos था तो वहाँ पे 2 cos स्क्वायर आता है. सो यहाँ 1 माइनस cos, यहाँ 1 माइनस cos है, तो वी यूज दिस फार्मूला. तो बगल में लिख दिया तो यही यूज कर लेते हैं. दिस इज 2 साइन स्क्वायर 8x का हाफ कितना हो जाएगा भाई 4x अपॉन ये नीचे होगा तो 2 साइन स्क्वायर 4x का हाफ 2x और ये 4 ऊपर हो जाएगा cos 4x अपॉन cos 8x नीचे. अब आप देखिए यहाँ पे sin 4 यहाँ पे cos 4 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 sin 4x इंटू cos 4x. अलग कर दो, एक साइन अभी भी बचा है sin 4x यहाँ रखो, ये cos 8x इसके साथ रख लो इंटू 2 यही रहने दो ये वाला, और ये sin 2x इंटू sin 2x. बेसिकली अब इसको भी खोलना पड़ेगा. sin 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या हो गया sin 2 थीटा, ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin ऑफ थीटा इंटू cos थीटा. यहाँ थीटा थीटा और यहाँ डबल थीटा, तो उस फार्मूले से ये क्या बन जाएगा 4 का डबल 8x, और इसको खोल दो तो 2 sin 2x इंटू cos 2x. इसको खोला और इसको इकट्ठा कर दिया अपॉन 2 cos 8x इंटू sin 2x इंटू sin 2x. तो आप देख सकते हो ये sin 2x, ये 2 और ये 2 कट गए. sin अपॉन cos अगर मैं करूं तो ऊपर हो गया tan 8x, लाना था मुझे, और ये sin नीचे है, cos ऊपर है तो ये नीचे tan हो जाएगा tan 2x. और यही हमारा राइट हैंड साइड का hence proved. Next question. This was a very good question. बहुत एग्जाम में पूछा जाता है. See the next question. I have a very good question. Question number 15. ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है. cos pi by 8
इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, अगला 5 पाई बाई 8 होगा, अगला 7 पाई बाई 8 होगा क्योंकि ये सारे ऑड हैं, और प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 8। कभी कभी एग्जाम में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, या प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 8। सो सी दिस, एक लॉजिक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 538 आ रहा है, और इनको ऐड करें तो ये 718 आ रहा है। बेस्ट लॉजिक है। और तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं पाई माइनस थीटा से। सो LHS प्रूफ, LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस पाई बाई 8। छोटे वालों को ऐसे रखो। यहां पे मैं करना चाहूंगा बिना कॉपी के 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 को कैरी राइट पाई माइनस 3 पाई बाई 8, बिकॉज 8 पाई में से 3 पाई माइनस करेंगे 5 पाई बाई 8 होगा, बिल्कुल सही। दिस इज बेसिकली 5 पाई बाई 8 इज अगेन, कुछ नहीं किया मैंने। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8। अगली लाइन में कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि पाई में से कभी भी माइनस करेंगे तो ये माइनस होता है। ये फार्मूला है, फार्मूला आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, इसी का माइनस होगा और ये इसका माइनस होगा। सो क्यों ना मैं डायरेक्ट a प्लस बी और a माइनस बी जो बनने वाला है, यार रहने दो एक बार, सबको समझ में आए। यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, और ये बगल में जो वहां है ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ a प्लस बी ए माइनस बी, इनको एक साथ a प्लस बी ए माइनस बी। सो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। सो बेसिकली ये साइन स्क्वायर हो गया पाई बाई 8, ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। दोनों ही साइन के स्क्वायर हो गए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, होल स्क्वायर कर देते हैं। साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। बेटर है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो, ताकि 2 साइन ए साइन बी बन गया, 2 साइन ए साइन बी। ये भी एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो नाउ वील यूज दिस आइडेंटिटी नाउ यहाँ पे। सो वील गेट, पहले तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1/4, और ब्रैकेट में आएगा कॉस ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करना है, और चलो लिख देता हूं मैं कॉस पाई माइनस 8 माइनस 3 पाई बाई 8 माइनस कॉस ए प्लस बी पाई बाई 8 3 पाई बाई 8। देखिए दिस इज 1/4, पाई बाई 8 में से 3 पाई बाई 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, कॉस माइनस 2 पाई बाई 8 2 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 4। एंड माइनस कॉस 4 पाई बाई 8, so this is पाई बाई 2। ये स्क्वायर छूट गया है, ओके नाउ गुड। अब ये तो 0 हो गया, cos 90 is 0 and this is cos of minus theta is cos theta, तो ये हो गया cos पाई बाई 4 that is 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/8 आ गया है आपका। बट फिर भी मैं बता दूं 1/4
और अब स्पेस भी कम है तो वैसे बता रहा हूँ cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा यानी cos पाई बाई 4 बन जाएगा ये, और cos पाई बाई 4 यानी cos 45 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, सो दिस इज 1/2 दैट इज 1/8 और यही हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 2-3 क्वेश्चन में भी बचे हों उन्हें भी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन तो अभी हैं, काफ़ी हैं, बट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आता है, समझ लीजिए इसको। इफ क्वेश्चन है, इफ tan x दिया हुआ है -4/3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस का, x lies in second quadrant, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 to 180। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आपको बताना है, ये दिया हुआ है फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तेज कर देता हूं। यू आर गिवन tan x = -4/3, इसके लिए ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एंगल x ले लिया, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दिस इज 4 दिस इज 3 देन दिस विल बी 5 बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा cos x क्या होगा, यहाँ से cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 3/5। साइन भी चेक करना है सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, इट मस्ट बी नेगेटिव। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज नेगेटिव? बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। अब cos के आपको फार्मूला याद है, साइन में भी आता है, वनली इन साइन, वनली इन cos, वनली इन tan, और सारे जब एंगल cos 2 थीटा का फार्मूला लगेगा तो ये सारे हाफ हाफ एंगल पे कन्वर्ट होंगे, सारी वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दिस इंप्लाइज 2 cos square x/2 -1 = -3/5। ये फार्मूला यूज किया है अपने cos 2 थीटा का, 2 cos square थीटा -1, ये फार्मूला है। तो जब 2 थीटा था तो थीटा आया, और यहाँ थीटा ही है तो y2 हो गया -1, और यहाँ से इजीली आप बता सकते हो cos square x/2, तो आप कहोगे ये 1 उधर जाके ऐड हुआ और बची बात ये 2 की, तो 2 से डिवाइड हो गया, तो 5 × 5 - 3, तो 2/2 × 5, ये भी कट गया, तो दिस इज 1/5, और आप देख रहे हो दिस इज cos square x/2। स्क्वायर होने के नाते तो पॉजिटिव ही पक्का है, लेकिन जब इसे स्क्वायर हटाएंगे cos x/2 तब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन अब हमें लेना कौन सा वैल्यू है, कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस या माइनस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब जो ये लिखा हुआ है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, लेकिन ये तो x की बात थी और आप एंगल x/2 पे हो, तो 2 से डिवाइड कर देगा इसे, तो ये हो जाएगा 5/4 x/2 एंड π/2, बस खत्म। अब आपने देखा ये 90 है, ये 45 डिग्री है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, ये x/2 x/2 x/2, तो इसका मतलब तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो दिस मींस cos x/2 नेगेटिव बिल्कुल नहीं लिखकर सीधे आप 1/√5 या इसे रेशनलाइज कर दें तो √5 ऊपर हो गया। और आपको पता है अगर cos निकल गया तो sin डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। दिस इंप्लाइज sin x/2 =√1 - cos square x/2 sin square theta plus cos square theta is 1, so 1 - cos square 1/5 का स्क्वायर रूट, तो 4/5, 4 का स्क्वायर √2, तो 2/√5, और √5 से अगर इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये मिलेगा आपको sin x/2 = 2√5/5।
ये साइन आ गया, ये आपका कॉस है। अब रही बात tan निकालने की, तो tan के लिए आपको पता ही है, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, sin x/2 अपॉन cos x/2। तो व्हेन यू डिवाइड, तो डिनोमिनेटर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 कट गया, न्यूमरेटर से ये कट गया, बचा क्या 2। सो 2 इज आंसर। tan x/2 is 2, sin x/2 is this, cos x/2 is this। फिर से सुन लो, आपको tan दिया हुआ है, tan दिया हो, cos दिया हो, sin दिया हो, you will start from here। अगर tan है तो पहले निकाल लो cos, sin है तो पहले निकाल लो cos, ट्राइंगल बनाकर। और जब cos आ गया तो cos का ही फार्मूला लगाओ, cos x/2 आ गया, cos आ गया तो sin आ गया, sin आ गया तो tan आ गया। These are very easy to find each and everything here। अच्छा, क्वेश्चंस अभी और भी हैं। अब मैं चाहता हूँ आज इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद एक और वीडियो बनाता हूँ, उसमें इसी को कंटिन्यू कराता हूँ, उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स। सो अराउंड 10-20 क्वेश्चंस टोटल हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 10-15 हो गए होंगे। सो 5-7 या और 2-4 क्वेश्चन डाल दूंगा इसमें। सो एक और वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पर, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी आर डी शर्मा से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखो, और डेफिनेटली अगर आपके लाइक एंड शेयर रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाना। और डेफिनेटली आई विल मेक मैनी वीडियोज। आई थिंक आई विल मेक videos on all the topic of your classes, will be of 11th, will be of 12th, and many more. So please like and share and subscribe first, the red button. Thank you.